नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। मैं हूं मोहित। आज हमारे साथ बेहद ही खास स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। आज और बेहद ही खास स्पेशल दिन है आज। आज एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी ऑपरेशन सिंदूर की और हमारे साथ आज मौजूद हैं मेजर जनरल विपिन बख्शी, फॉर्मर एडीजी नॉर्थ ईस्ट रीजन एनसीसी। ही इज़ आल्सो द co-author of the highly acclaimed and widely discussed book Red Lines Redrawn, Operation Sindoor and India's New Normal. Sir has been a versatile speaker and a great defense analyst. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में सर। Yeah, thank you very much for having me on the show, Mohit. आपका बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. Sir, the term India's new normal is the part of your book title. How India's approach has changed under the new normal, sir? So the new normal has been defined by no less than the Prime Minister in his address to the nation, which is just after Op Sindoor, where he had said very clearly that there will be retaliation to terrorism. We will not tolerate nuclear blackmail, and we will not segregate between the terrorists and the terror sponsors. तो जो टेररिस्ट को पनपने दे रहे हैं अपने एरिया में, वो भी बचेंगे नहीं, और अगर हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो ये तीन चीजें थी न्यू नॉर्मल में, और ये हमारी पिछली स्ट्रेटजी से कुछ हद तक बदलाव है। जी सर, on this first anniversary, how do you access the Operation Sindoor's legacy? What lasting impact has it on India's securities domain and doctrine? So first and foremost, this is the first armed conflict in history wherein both adversaries had nuclear weapons. इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी युद्ध में दोनों पक्षों के पास न्यूक्लियर हथियार थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, a very significant change, because with this we established that there is adequate space between subconventional war and nuclear war. That is, the standard conventional war was also having a space, and we exploited that space very significantly. And why this is very important? Because there were certain red lines which Pakistan had earlier drawn. So as per them, if there is a conventional war, very early they will activate something which they call the full spectrum deterrence. तो उनको पता था कि अगर युद्ध होगा तो बहुत जल्दी पाकिस्तान हारना शुरू करेगा, और उनके न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में नो फर्स्ट यूज नहीं है। उन्होंने तो साफ कहा है कि जैसे ही हमें कोई भी कष्ट लगेगा हम न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करेंगे। उनका बहुत अर्ली रेड लाइन था, और पूरी दुनिया ये मानती थी कि अगर युद्ध हुआ और पाकिस्तान जरूरी है कि वो बहुत जल्दी युद्ध हारने लगेगा, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा, जो कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत हानिकारक हथियार है। तो इस कारण हम पाकिस्तान के रेड लाइंस के कारण सीमित थे। We were being, constrained by externally driven red lines. But with Op Sindoor, we have very clearly given the signal: we will not accept externally defined red lines. We draw our own red lines, and we have demonstrated the willingness to act on them. So therefore, the title of my book also, Red Lines Redrawn, which you have also mentioned. So that is how we have analyzed this whole situation. Sir, Red Line Redrawn has been very researched book, and you have also mentioned about dynamic response doctrine. सर आप थोड़ा समझा सकते हैं सर, डायनेमिक रिस्पांस डॉक्ट्रिन नॉर्मल डॉक्ट्रिन से डिफरेंट क्या है सर? तो पहले तो ये मैं उसी के बारे में बताऊंगा कि वेल रिसर्च बुक ये कैसे है। It is firstly cleared for publication. So we have gone through the entire process. We've had discussions with Army, Navy, Air Force and the CDS. So and also members of NSAB, जो के 33 कंट्रीज के जो हमारे विदेशी डेलीगेशंस गए थे, उनमें से 2 के साथ हमारा ताल्लुक रहा। हमने कुछ उनसे भी समझा, तो ये क्रेडिबल है और ऑफिशियल वर्जन से बहुत नजदीक है। आर्मी चीफ ने भी जिस दिन ये बुक रिलीज हुई है, he had said
This is as close to reality. So it is a well-researched book. That is one. Secondly, it is the first book which is co-authored between military officers and a diplomat. So जी हमारे आर्मी है, हमारे पास एयरफोर्स ऑथर है और एक डिप्लोमेट भी है, तो ये को ऑथर्ड बुक है। इसलिए ये हमने ये कोशिश की है कि आपको एक बहुत ऑथेंटिक वर्जन दिया जाए। इट इज एन ऑथेंटिक वेल रिसर्च्ड बुक, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। यू आस्क्ड अबाउट डायनेमिक रिस्पॉन्स। तो जब हमारी गुफ्तगू चली और हमारे इंटरव्यूज हो रहे थे, हमने कुछ क्वेश्चनर्स भी एक्सचेंज किए अपने मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ, तो हमने ये पाया कि सर्जिकल स्ट्राइक्स उरी 2016, बालाकोट स्ट्राइक 2019, इन दोनों के बीच में इंडियन मिलिट्री ने एक नया डॉक्ट्रिन तैयार की, जो इसके पहले हमारा कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन था, अभी हमारा डायनेमिक रिस्पांस डॉक्ट्रिन है। तो जैसे अब इसके पहले हमारा और एक डॉक्ट्रिन था जिसको सुंदरजीत डॉक्ट्रिन से मशहूर था, वो 80s में था। पहले जो हमारा डॉक्ट्रिन था वो था कि हम बड़ी तादाद में मैकेनाइज्ड फोर्सेस दूर तक हम पाकिस्तान के अंदर वार करेंगे, वैल्यू टेरिटरी को कैप्चर करेंगे। सो इट वाज बेस्ड ऑन अ लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड थ्रस्ट एंड 2 to 3 थ्रस्ट वुड गो डीप इनटू पाकिस्तानी टेरिटरी। जी लेकिन ये डॉक्ट्रिन को इस्तेमाल करने के लिए बहुत तादाद में हमें फोर्सेस बॉर्डर के पास इकट्ठी करनी जरूरी थी। बाकी जो फौज हमारी है जो पूरी पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं है, उनको मूवमेंट करने में टाइम लगता है। तो जनरल एनसी विज हैं जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के जो आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने पिछले साल ही किताब निकाली है अलोन इन द रिंग, जनरल एनसी विज। एक पूरा चैप्टर में उन्होंने डॉक्ट्रिन का एवोल्यूशन बताया है कि पहले हमारा क्या डॉक्ट्रिन था। उस टाइम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, हमारा कश्मीर का जो मुद्दा है और जो टेररिज्म था वो 80s में नहीं था। और नंबर 3, जो इतनी सारी तादाद में फोर्सेस हमको मूव करने की जरूरत थी, उससे हमारी सरप्राइज जा रही थी। तो ये 3 कारण के थे जो हमने डॉक्ट्रिन बदली की और कोल्ड स्टार्ट का निर्माण। Now, what is the cold start doctrine? It is के कुछ फोर्सेस हमारे बॉर्डर के पास ही जो है तैनात रहेंगे और वो फोर्सेस बहुत जल्दी जीरो वार्निंग पे 8 से 10 जगह शैलो इंसर्शन करेंगे, 10 से 15 किलोमीटर केवल, क्योंकि पहले हम 60, 70, 80, 100 किलोमीटर की बात करते थे। अभी हमने कहा कि हम छोटे छोटे 8 से 10 इंकर्शंस करेंगे, और ये था कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, जिसमें सरप्राइज हमारा लूज नहीं हो रहा था। लेकिन ये डॉक्ट्रिन भी हमने देखा कि जो है बॉम्बे के टाइम हम इस्तेमाल नहीं कर पाए। इनफैक्ट पाकिस्तान तो कहता था कि हमने आपका कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को नाकाम कर दिया। तो उसके बाद जब 2015 आया, 2016 में जो है पठानकोट अटैक हुआ, और 2016 में ही जब उरी अटैक हुआ, तो हमने अपना रवैया जो है बदली कर दिया और हमने छोटी सैनिक टुकड़े से सर्जिकल स्ट्राइक किया। तो उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑप सिंदूर में जो हमारे मिसाइल के हमले हुए हैं, आप मान लीजिए ये सब सर्जिकल स्ट्राइक के से ही मिलते जुलते हैं, और ये हमारे डायनेमिक रिस्पांस डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। डायनेमिक रिस्पांस डॉक्ट्रिन क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा सैनिक टुकड़ा वार करे। हमारा टेक्नोलॉजी भी इसी दौरान बढ़ गया है और हमारी ये काबिलियत है कि हम प्रिसाइज सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जहां चाहें वहां हम कर सकते हैं। ये हमारा डायनेमिक रिस्पांस डॉक्ट्रिन है। आपने देखा उरी सर्जिकल स्ट्राइक्स में छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियां गई जो है कमांडो थी, वो फिजिकली पार करके गई और उन्होंने आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद किया और वापस आ गए। बालाकोट में हमने अपना और एक जो है पहलू दिखाया कि हम बाय एयर, हमारे एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हुए, हमने एलसीबी पार किया, आईबी भी पार किया, और पाकिस्तान में जो स्थित बालाकोट है उस पर हमला हुआ। और तीसरा जो आपको मिला उदाहरण,
वो ऑप सिंदूर में है, जिसमें कोई भी सैनिक टुकड़ी बॉर्डर या एलसी को पार नहीं की, लेकिन फिर भी हमने बहुत ही बड़ा नुकसान उनके आतंकवादी ठिकानों पे किया। तो ये हमारा डायनेमिक रिस्पांस डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा है कि हम किस तरीके से वार करेंगे। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी तादाद में फौज जाएगी, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बड़ी तादाद में नहीं जा सकते। कोल्ड स्टार्ट भी हम कर सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में भी जा सकते हैं, लेकिन हम यही डायनेमिक है कि हम जितना चाहें हमारा मुद्दा हासिल करने के लिए उतना ही फोर्स हम इस्तेमाल करेंगे। ये मेन एक चीज है डायनेमिक रिस्पांस डॉक्ट्रिन की। दूसरा बड़ा पहलू ये है एस्केलेशन कंट्रोल, कि किस लेवल तक हम इस युद्ध को आगे ले जाना चाहते हैं, ये है एस्केलेशन कंट्रोल जी। तो ये एक बहुत दोनों चीजें हैं कि कम से कम फोर्स का इस्तेमाल करते हुए कम से कम हमारे फोर्सेस बॉर्डर पार करें और हमारा मुद्दा भी हासिल हो, और जो है युद्ध बहुत आगे भी ना बढ़े। सर जो पाकिस्तान ने, जब हमने एयर बेसिस को स्ट्रक करा, उसके बाद उसने सीज फायर का रिक्वेस्ट किया इंडियन मिलिट्री से, इंडिया से। अगर वो उस समय नहीं रुकता और सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज वो 10 मई को नहीं मांगता और वो आर्मी को आगे बढ़ाता और अपने आर्मर्ड ब्रिगेड्स को आगे बढ़ाता, तब हमारा क्या रिस्पॉन्स रहता सर? सो ऑप सिंदूर के आखिरी क्षणों में हम बिल्कुल तैयार थे कि वो कोई भी कदम उठाए, हम तैयार हैं। इतना मीडिया में नहीं आया, लेकिन हमारी कुछ फोर्सेस बॉर्डर के पास भी पहुंची हुई थी। तो ये नहीं है कि हम पूरे युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, हम तैयार थे। जिसका आपने जिक्र किया कि 10th मॉर्निंग को जो हमारे बहुत बड़े हमले हुए और उनके 11 एयर बेसेस हमने जो है बर्बाद किए, तो उनकी क्षमता बहुत हद तक हमने मिटा दी थी। रेजिडुअल कॉम्बैट पोटेंशियल जितना भी था उनके पास, थोड़ा बहुत आर्मी फोर्सेस, थोड़े ड्रोन, थोड़े मिसाइल से वो वार कर सकते थे। उसके लिए हम बिल्कुल तैयार थे। उससे पिछले 7 की रात को, 8 की रात को, ज्यादातर 9 की रात को भी उन्होंने कोशिश किया था, लेकिन हमने उनकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी थी। यहाँ तो इवन इजराइल ने बोला है कि हमारा आयरन डोम भी ईरान ने कुछ हद तक जो है छल्ली किया था, लेकिन इंडिया का जो एयर डिफेंस था वो कहीं भी नाकाम नहीं हुआ। तो हम एक और रात या 2 और रात भी कर सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, अगर जैसे मैंने कहा एस्केलेशन कंट्रोल, कि हमने पहले केवल आतंकवादी ठिकाने को निशाना बनाया। जब उन्होंने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और सिविल इंस्टॉलेशंस और हमारे मंदिर, गुरुद्वारों पे हमला किया, तब भी हमने उनका सिविल पॉपुलेशन के ऊपर वार नहीं किया। हमने अगली रात केवल मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर वार किया। तो हमारा एस्केलेशन कंट्रोल था। अगर जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, अगर और पाकिस्तान इस युद्ध को आगे ले जाता तो हमारे पास और भी वार करने के साधन थे। आपको याद होगा हमारी नेवी फ्लोटिला बिल्कुल जो है कराची के नजदीक पहुंच चुकी थी। वहां से रेंज उनका बहुत था। उनके पास बहुत मिसाइल थे, जो है कई किस्म के मिसाइल्स थे। अगर जरूरत पड़ती तो हम उस दिशा से वार करते, और ऐसा वार करते कि बहुत हानि पहुंच जाती पाकिस्तान को। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि ये इसका दर्जा बढ़े, तो हमने स्विफ्ट जो है टर्मिनेशन ऑफ कंट्रोल, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल किया। और जैसे ही पाकिस्तान ने बोला कि हमें युद्ध विराम चाहिए, तो हम तो डे 1 से तैयार थे। हमने उनके 9 आतंकवादी ठिकाने बर्बाद किए। उसके अलावा हमारा कोई मुद्दा था ही नहीं। वो तो उन्होंने बढ़ाया। जैसे उन्होंने युद्ध की नीति बढ़ाई, हम भी बढ़ाते गए। जैसे उन्होंने बोला कि भाई हमें शांति चाहिए, बोला हम तो पहले तैयार थे। तो हमने उसी दिन सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, युद्ध विराम कर दिया। सीज फायर अग्रीमेंट टाइप नहीं हुआ था, लेकिन हमने ये मान लिया कि अभी हम मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर, जर्मन्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में ब्लिट्जक्रीग जिसे बोलते हैं, कि मतलब बहुत तेजी से हमला करना, तो कैन वी सी ऑपरेशन सिंदूर वाज इंडियाज मॉडर्न ब्लिट्जक्रीग? Yes, you can say that. Actually, if you look at
blitzkrieg. So what we did in East Pakistan in 1971 was a classic blitzkrieg. However, in both the instances, there is a need for occupation of territory. At the same time, the net result is same, that is to capitulate the enemy. तो दुश्मन को हमारे टर्म्स मानने पे मजबूर करना, वही जर्मनी ने किया ब्लिट्जक्रीग के दौरान, वही हमने किया लाइटनिंग कैंपेन 1971 ईस्ट पाकिस्तान में. एंड हाँ, मैं भी सहमत हूं कि इसी तरीके का वार हमने किया ऑप सिंदूर में. जी सर, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज आई थी प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से मीडिएशन का. हाउ डू यू व्यू सच एक्सटर्नल मीडिएशन नैरेटिव्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सर? ये इनफैक्ट मेरी किताब में इसके बारे में भी जिक्र है कि ये क्या है जो ट्रम्प बार बार बोल रहा है कि मैंने युद्ध रुकवाया. ट्रम्प क्लेम्स दैट ही मीडिएटेड द कॉन्फ्लिक्ट. तो मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप मीडिएशन बोल रहे हो तो उसमें 3 पार्टी चाहिए. जिस तरीके से अभी यूएसए ईरान का जो मीडिएशन हो रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा है. तो पाकिस्तान एक पार्टी है, यूएसए एक पार्टी है, ईरान एक पार्टी है. तीनों बैठते हैं और ये जो है डिस्कशन होता है. तो ऑप सिंदूर में जो ऐसा कोई 3 पार्टी का डिस्कशन तो हुआ ही नहीं. हमेशा युद्ध के टाइम और शांति के टाइम फोन कॉल होते हैं, डिस्कशन होते हैं. हमारे पीएम ने बोला कि हाँ भाई वांस जी का फोन आया था. तो फोन तो आते रहते हैं, लेकिन ये मीडिएशन नहीं था. मुझे एक जूम कॉल ही दिखा दो या एक मीटिंग दिखा दो जहां तीनों पक्ष एक साथ बैठे हों, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान ने कोई मीडिएशन किया हो. ऐसा तो कुछ हुआ नहीं. ये नॉर्मल डिप्लोमेसी है कि भाई कहीं पे कुछ भी हो रहा है, चाहे वो ट्रेड के ऊपर है, अगर 3 पक्ष हैं उसमें तो एक पक्ष दूसरे से बोलता है कि भाई आप प्लीज इस मुद्दे को इस तरीके से हल कीजिए. वो पार्टी बोलेगी हाँ ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली. लेकिन ये मीडिएशन नहीं है, ये बातें चलती रहती हैं. ये नॉर्मल डिप्लोमेसी एक चीज है, मीडिएशन एक चीज है. दूसरी बात, जो नॉर्मल डिप्लोमेसी है वो पर्दे के पीछे रहती है. कोई ट्रेड डील साइन होती है, उसमें केवल 2 लीडर आके साइन करते हैं. उसके पीछे 15 राउंड टॉक्स हुए हैं, 50 फोन कॉल्स हुए हैं. वो सब जो है बैक चैनल पे चलता है और फाइनल अग्रीमेंट केवल दर्शाई जाती है. बैक चैनल का जो टॉक चल रहा है उसको फ्रंट चैनल में लाना, यही सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज है जो शायद ट्रम्प साहब नहीं समझते हैं. ये फ्रंट चैनल में क्या बोलना है और बैक चैनल की बात क्या है, इन दोनों को वो मिक्स कर रहे हैं. इसलिए पाकिस्तान ने इंडिया को बोला कि भाई हमें युद्ध विराम चाहिए. हमने उसके बाद जो है समझौता किया और हमने हाँ बोली. ये जब बात चली रही थी तो एक भाई साहब हैं जो अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल पे बोल देते हैं कि युद्ध विराम हो गया और मैंने कराया. अरे भाई अभी तक तो पाकिस्तान और इंडिया ने तो हाँ बोली नहीं है और आपने पहले ही जो है ऐलान कर दिया. तो ये जो है डिप्लोमेसी कैसे चलती है और बिजनेस डील्स कैसे चलते हैं, इसमें फर्क है और शायद मिस्टर ट्रम्प ये नहीं समझते हैं. दूसरी बात, हमने कभी नहीं माना है कि इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे में कोई तीसरे पक्ष की दखलंदाजी होगी. हम नहीं मानते और ना इस बार हुई है. तो अभी हम बोल रहे हैं कि भाई ये बायलैटरल था, हम दोनों के बीच था. वो बोले जा रहे हैं कि नहीं भी मैंने करवाया. तो ये इसका कोई मीटिंग पॉइंट आ नहीं रहा जब तक वो समझेंगे नहीं कि भाई हम मीडिएशन को नहीं मानते. पाकिस्तान इंडिया के बीच में शिमला एग्रीमेंट है, बायलैटरल चीजें हैं, हम मीडिएशन को नहीं मानते हैं. तो आप क्यों बार बार बोल रहे हैं कि भी मैंने मीडिएशन किया? वो चाहते हैं कि उन्हें नोबेल प्राइज मिले. अभी इसके बीच में हमारा ना कोई सपोर्ट है ना कोई विरोध है. आपको नोबेल प्राइज चाहिए, आप अपना रवैया इस्तेमाल कीजिए, हमें क्यों बीच में डाल रहे हैं? ये इशू. Okay, in answer to the other question about the new doctrine, another major change is we were earlier having a strategy of restraint. We were exercising strategic restraint. We were not prone to launching war without,
without any preparation or without adequate reason. And we always felt that diplomacy is the better answer. So I will just come back to this again to say that earlier we had a policy of strategic restraint. इतने ही हमले हुए, पार्लियामेंट अटैक हुआ, उसके पहले बॉम्बे में जो है कई तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जी। तो हमारा मुद्दा ये उस टाइम रहा है, हमारा रवैया ये रहा है कि हम युद्ध नहीं छेड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि और तरीकों से ये जो है इशू में समझौता हो। और हम ये भी चाहते थे कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय जो है, इंटरनेशनल इंटरवेंशन ना हो, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर आए और जो कि पाकिस्तान के ऊपर जो है कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाएं और सबके साथ मिलके हम पाकिस्तान का रवैया बदलें। लेकिन ये पिछले कुछ सालों में हमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये रवैया नहीं चलेगा। तो जो पहले स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट था, अभी हम प्यूनिटिव डेटरेंस पे आ गए कि अगर ये ऐसा कुछ होगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसमें हम कोई भी फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिजिकल सर्जिकल स्ट्राइक। हमारे फौजी जाएंगे वहाँ, कुछ जो है आतंकवादी हमले जो हो रहे हैं उनके जड़ तक पहुंचेंगे। हमारे हवाई जहाज भी जा सकते हैं, हमारे मिसाइल भी जा सकते हैं। हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाके वार कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि ये हम युद्ध का ऐलान करते हुए करें। पहले क्या था कि अगर आप युद्ध का ऐलान नहीं करते हैं तो आप वार नहीं करते। तो ये सब जो पुराने रूल्स थे उनसे हम आगे बढ़ गए हैं और हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा ही रवैया है। युद्ध का ऐलान नहीं होता है लेकिन हमला हो जाता है। तो हमारा जो डॉक्ट्रिन है वो चेंज हुआ है फ्रॉम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट टू प्यूनिटिव डेटरेंस। तो ये एक और बड़ा चेंज है जो हमारे डायनामिक रिस्पांस डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। जी सर। रेड लाइन्स रीड्रॉन्स मेंशंस सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजिनस सिस्टम्स, जैसे आकाश तीर हो गया, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गई। सर, ड्यूरिंग द ऑपरेशन हाउ क्रूशियल वर दीज लोकल सॉल्यूशंस? तो यहाँ बहुत ही हद तक हमारे इंडिजिनस सॉल्यूशंस ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम किया। There was a great success using our indigenous solutions. And मैं तो ये भी बोलूँगा कि अगर हमने वो इंटीग्रेशन ना किया होता तो शायद ऑप सिंदूर का रिजल्ट कुछ और होता। सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है, जो एयरफोर्स के रडार हैं और आर्मी के रडार हैं, दोनों एयर डिफेंस के एरिया में काम करते हैं। जब आर्मी की फोर्सेस मूव हो रही हैं तो हमारे रडार साथ मूव होते हैं। अच्छा। और जो आर्मी की फोर्सेस के ऊपर हमला आ रहा है उनको बचाने के लिए हमारे पास हथियार भी हैं। तो आर्मी के रडार हैं और आर्मी के एयर डिफेंस हथियार हैं, लेकिन ये अलग काम करते थे। और एयरफोर्स के जो रडार और हथियार और मिसाइल और गन्स हैं वो अलग काम करते थे। ये तकरीबन एयरफोर्स उन एरिया में तैनात है जो स्टैटिक हैं। हमारे बड़े एयरबेस हो गए, बड़े सिटीज हो गए जो हिलती नहीं है, तो वो स्टैटिक एयर डिफेंस है। आर्मी का मोबाइल एयर डिफेंस, ये दोनों अलग अलग चलते थे। कुछ ही साल पहले ये हमने इंटीग्रेशन शुरू किया और अगर एक ही जहाज आ रहा है, वही जहाज आर्मी को भी दिख रहा है, वही जहाज एयरफोर्स को भी दिख रहा है। तो ऐसा ना हो कि दोनों मिसाइल फायर करते हैं। तो हमारे पास मिसाइलों और गन एम्यूनिशन को कंट्रोल में रखना है, बिना मतलब के हमें एक ही टारगेट पे 2 मिसाइल फायर करने की जरूरत नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन हमने कुछ ही साल पहले शुरू किया और इनफैक्ट कुछ ही महीने ऑप सिंदूर के पहले ये कामयाब हुआ। और ये एक बहुत बड़ी चीज थी हमारा इंटीग्रेशन। दूसरी बात, आत्मनिर्भर की बात की आपने। हमारे आत्मनिर्भर कैंपेन के होते हुए कई हथियार ऐसे थे जो हमारे देश में ही अभी बनने लगे हैं, उनका एम्यूनिशन हमारे पास है। तो जब भी युद्ध होता है तो जो विदेशी हथियार हैं और विदेशी एम्यूनिशन हैं, उनका इस देश में आना युद्ध के दौरान कई बार मुश्किल हो जाता है। ये हमने पहले भी पाया है। और
हम हमेशा इस तरीके का स्टॉक नहीं रख सकते कि हम बहुत लंबा युद्ध चलाएं। हम कुछ स्टॉक रखते हैं और कुछ उम्मीद करते हैं कि युद्ध नजदीक आने के टाइम हम और उसका एम्यूनिशन और हथियारों का तादाद बढ़ाएं। लेकिन वो कोई गारंटी नहीं है कि कोई भी विदेशी सोर्स से हमें उस तादाद में मिल पाएगा। तो इस बार हमारे पास अपना ही उत्पादन था और ये हमारे लिए बहुत ही कामयाब जो है साबित हुआ। और जिस तरीके से आप बोल रहे हो, ये इंटीग्रेशन बिटवीन आर्मी नेवी एयरफोर्स सिस्टम्स एंड बिटवीन इंडियन इंडस्ट्री एंड इंडियन डिफेंस, ये इंटीग्रेशन दोनों बहुत कामयाब रहे और आगे चल के भी हम यही चाहते हैं कि इसमें और मजबूती आए। So, were there any weaknesses while working on these multi-domain framework structure or strategies? So you have mentioned about the multi-domain operations. As it is well known now, most जी of सर. these battles are not fought in a single domain. There is air, land, sea, space, there is cyber, electronic warfare, and most importantly is the information domain. So a lot of studies have been done. If you look at the international repercussions of this, we were slightly weak in our strategic communication. तो हमने कन्वेंशनल वॉर और मिलिट्री ऑपरेशंस पे बहुत ध्यान दिया और बहुत कामयाबी पाई। लेकिन ये जो नैरेटिव वॉर है, इसमें हमारा थोड़ा सा वीकनेस रहा और मैंने अपनी किताब में इसके बारे में भी काफ़ी जिक्र किया है कि बाकी देश कैसे करते हैं और हम कैसे कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो सवाल ये है कि कई टीवी चैनल्स हैं, कई न्यूज़ चैनल्स हैं, कई प्रिंट चैनल्स हैं, उनमें जो है तालमेल कम है और खासकर हमारा विदेशी मीडिया में हमारा पहुंच कम है। So we need to enhance our reach in the international media. We need to have better integration of the narrative and the way the narrative is conveyed, the way we communicate, the way we have strategic communication. It needs to be better coordinated. And to manage this, I don't think you can count on the existing systems. इनफैक्ट कल ही जो एक और ऑप सिंदूर की किताब रिलीज हुई है जनरल ध्रुव कटोच की, उसके दौरान मैंने उनको यही सवाल पूछा था कि सब मानते हैं कि वी वर वीक इन आवर नैरेटिव एंड द कम्युनिकेशन बैटल। वैसे वी वर वीक, इंडिया वाज वीक, who is that person or which is that organization who we can say that this organization was weak in communication? हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। 3 दिन जब लड़ाई चल रही थी, रोज सुबह फॉरेन सेक्रेटरी जो एमईए के हैं, एक एयरफोर्स ऑफिसर विंग कमांडर भीमुका सिंह और एक आर्मी ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी, 3 लोग वहां खड़े होते थे। जी सर। इनमें से एक कौन है जो जिम्मेदार है? तीनों ने अपना अपना स्क्रिप्ट अलग अलग बोला और 4 दिन तक वो लगातार आए, अपना स्टेटमेंट दिया और मीडिया के कोई सवाल नहीं लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई हम किससे पूछ सकते हैं? अगर मैं मीडिया वाला हूं और मुझे कुछ सवाल है कि ठीक है भाई सर, आपने एबीसी बोला है, आपने एबीसी किया है, एयरफोर्स ने ये किया है, एमईए ने ये किया है। मेरा सवाल छोटा सा है जो मेरे मन में शक है, ताकि मेरा रिपोर्टिंग और जर्नलिज्म सक्रिय हो, ज्यादा कामयाब हो। तो मुझे सवाल जवाब करने का हक है, लेकिन वो हक नहीं दिया गया। अच्छा ठीक है, आपने एक ब्रीफिंग ले ली, उसके बाद कोई आप और एक टाइम दे दीजिए, एक कोई सिंगल ईमेल आईडी दे दीजिए कि जिसको भी ऑप सिंदूर पे कुछ पूछना है, फलाने ईमेल आईडी पे आप जो है पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे 1-2 घंटे 3 घंटे में आपको जवाब दें। लेकिन वो जवाब मीडिया के पास नहीं आया। आपको वेट करना है अगले दिन के लिए। अगले दिन आप फिर जाएंगे सुनने के लिए, आप सुन के आ जाएंगे, लेकिन आपका जो शक है या कोई सवाल है, उसको साफ करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है। तो मैं चाहता हूं, हमारी किताब में लिखा है हमने कि ऐसी एक एजेंसी स्थापित की जाए। इसी के संदर्भ में इनफैक्ट मीडिया में आया है, मेरे अपनी किताब में भी लिखा है, एक मीडिया वॉर रूम बनाया गया था, लेकिन वो एमईए, एमओडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से हटके कहां बना? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बनाया मीडिया वॉर रूम।
हमारे जब सीडीएस से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जब ऑपसंदूर शुरू हुआ तुरंत मुझे बोला गया एक आर्मी, एक नेवी और एक एयरफोर्स ऑफिसर नियुक्त किया जाए जो फटाफट जाए, और हमने एक मीडिया वॉर रूम बनाया है। तो ये फौजी वहां गए मीडिया वॉर रूम में। अभी वो अफसर भी जो गए हैं वो तो रोज कहीं पीछे आके पूछेंगे ना कि भाई हमें क्या बोलना है जी। और आप पहली बार जा रहे हैं सिविल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि वॉर रूम है, आपने पहले कभी देखा नहीं है। इस चीज में आपको सालों सालों का तजुर्बा चाहिए। ये एक रात में आप मीडिया एक्सपर्ट नहीं बन सकते, और मीडिया कम्युनिकेशन को चालू रखने के लिए आप कामयाब नहीं हो सकते एक रात में। तो हमने इसको इंस्टीट्यूशनली बनाया नहीं है, हमको जरूरत महसूस हुई, हमने मीडिया वॉर रूम बनाया। ऐसा मीडिया वॉर रूम 24 घंटे 365 दिन सालों साल चलना चाहिए। तो उसको चलाने के लिए एक एजेंसी चाहिए। उस एजेंसी के पास सारे मीडिया से लिंक होना चाहिए, कुछ हद तक उनका रिलेशनशिप बनना चाहिए सालों साल तक। उनके पास मैंडेट और एम्पावरमेंट होना चाहिए, उनके पास फंडिंग होनी चाहिए, कोई बजट होना चाहिए कि भाई आपने ये देश की बात पूरी दुनिया में रखनी है, आपने ये देश की बात देशवासियों को बतानी है। तो इस सब के लिए आपको लोग चाहिए जो एक्सपर्ट्स हों, आपको एक ऑफिस स्पेस चाहिए जहां ये सब काम हो, और कुछ फंडिंग चाहिए। जब ये ना फंडिंग है, ना कोई वॉर रूम है और ना कोई एक्सपर्ट्स हैं, तो आपका नैरेटिव वॉरफेयर, कॉग्निटिव वॉरफेयर, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कैसे चलेगा? इसके बारे में इनफैक्ट मैंने प्रेजेंटेशन भी दिए हैं एनएससीएस में और एनएसएबी को, और हमको सुनने में आया है कि इस दिशा में कुछ काम हो रहा है। हाल ही में एक एयरफोर्स ऑडिटोरियम में इवेंट हुआ था ऑपसंदूर के ऊपर, और जो विशेषज्ञ हैं वहाँ आए थे, उन्होंने बोला है कि हाँ, हमने पाया है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी मीडिया की पहुंच कम थी, इसके ऊपर काम चल रहा है, हम आगे इस काम को बढ़ाएंगे। तो ये कमियां महसूस हुई हैं, इनके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि और भी तेज इन पे काम हो। और कई विशेषज्ञ हैं इसी फील्ड में, उनकी राय ली जाए और एक बहुत ही कामयाब कम्युनिकेशन डायरेक्टिव इशू किया जाए। हमने बोला है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन अथॉरिटी हो, किसी ने बोला है नेशनल इंफॉर्मेशन एडवाइजर हो, मैंने पहले बोला था डिप्टी एनएसए हो। एक हमारे पास आज की डेट में 3 डिप्टी एनएसए हैं। एक टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस देखते हैं, एक इंटरनल सिक्योरिटी देखते हैं, और एक हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स देखते हैं। 3 हमारे पास डिप्टी एनएसए हैं। एक मिलिट्री एडवाइजर हैं, एक साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर हैं हमारे, सॉरी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो ये 5 लोग हैं एनएससीएस में, एनएसए के पास। मैंने राय दी थी कि एक और डिप्टी एनएसए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो देश विदेश में हमारे मुद्दों को ठीक तरीके से ऐलान करे। तो इसके बारे में काफी चर्चा भी हुई है, और आज ही जो हेडक्वार्टर आईडीएस है उनकी तरफ से एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन अथॉरिटी तैनात की गई है, खड़ी की गई है। वो अभी धीरे धीरे आगे आएगी, ताकि कम से कम ट्राई सर्विस हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स एक साथ तरीके से अपना जवान दें। तो अगली बार ये जरूरत ना हो कि एक अलग आर्मी ऑफिसर खड़ा हो, एक अलग एयरफोर्स खड़ा हो। और 11 तारीख को जो ये युद्ध विराम होने के बाद आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें पहली बार सवाल जवाब किए गए थे। डीजीएमओ जनरल घाई, डीजीएनओ नेवल ऑपरेशंस, और डीजी एयर ऑप्स एयर मार्शल भारती, ये तीनों थे। और मेजर जनरल शारदा जो आर्मी के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन देखते हैं, ये चौथे थे। चारों लोग वहां थे, और मीडिया की ब्रीफिंग हुई पूरे ऑपसंदूर के ऊपर, और मीडिया के सवाल जवाब भी हुए उस दिन। तो मैं समझता हूँ अगली बार 4 लोगों की जरूरत ना हो, और एक ही जानकार आदमी वहां खड़ा हो, वो आर्मी नेवी एयरफोर्स और एमईए और एमओडी की तरफ से और मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से एक ही इंडिया का स्पोक्स पर्सन होना चाहिए। आप देखेंगे बाकी देश यही करते हैं, एक स्पोक्स पर्सन होता है।
ये हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो जरूरी था कि हमने 4 सीनियर ऑफिसर वहां खड़े किए। थैंक यू। सर, टर्की, बात कही गई थी कि टर्की और चाइना के ने बहुत बैकग्राउंड रोल प्ले किया और सप्लाइंग टू द पाकिस्तान वेदर थ्रू द स्पाई सैटेलाइट्स एंड एवरीथिंग, drones and other things. How do you see it, sir? So this has been another issue which has come up repeatedly, that just a few months or just the previous year when there was an earthquake in Turkey, it was India which sent a medical team to help them. इंडियन आर्मी के डॉक्टर्स गए थे और उनका जो भूचाल आया था, बहुत ही बड़ा भूचाल आया था, उनके लोगों को हमने जो है सहायता दी थी। और उसके कुछ ही बाद जब इंडिया पाकिस्तान का हुआ है तो टर्की के ड्रोन वहां आ रहे हैं, टर्की को असिस्टेंस वो मिल रहा है, साथ साथ चाइना का भी असिस्टेंस मिला उनको। चाइना के सैटेलाइट उनके वेपन्स को गाइड कर रही थी। तो हमने हमारी किताब में एक पूरा चैप्टर जो है डिप्लोमेसी पे है, जिसमें हमने ये लिखा है कि हमको फाइनली ये जो भी लड़ाई होनी हमने अकेले ही लड़नी है। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि आपने पूछा है, मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कुछ सालों बाद हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में गिने जाएंगे। तो भारत का इतना आगे उभरना किसी को भी पसंद नहीं है। अगर हम समझते हैं कि कोई भी हमारा दोस्त है जो हमें बढ़ता हुआ खुश हो रहा है, तो वो केवल जो छोटे देश हैं जिनके साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, वही खुश हैं। इजराइल हो गया, छोटे देश और हो गए, वो जरूर चाहेंगे। शायद कुछ हमारे ऐसे दोस्त अफ्रीका में हैं, लेकिन बाकी सारी दुनिया, चाहे चाइना है, चाहे यूएसए है, चाहे कोई भी है, वो इतना खुश नहीं है कि इंडिया आगे बढ़े। तो अगर हम समझते हैं कि पूरी दुनिया हमें मदद करेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हमने अपनी मदद खुद ही करनी है, अपनी लड़ाइयाँ हमने खुद ही लड़नी है। वी हैव टू बी सेल्फ, वी हैव टू हैव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एंड वी हैव टू हैव ओनली इशू बेस्ड कोऑपरेशन। ये जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं, वो भी पार्टनरशिप्स ही हैं। कुछ हद तक आपको इंटेलिजेंस कोई दे देगा, कोई सैटेलाइट सिग्नल कोई दे देगा, लेकिन कोई आपके साथ युद्ध में खड़ा नहीं होगा। और ज्यादा ही जो भी लोग आपसे जलते हैं और आपको उभरता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वो आपके दुश्मन को हेल्प करते रहेंगे। तो ये तो रणनीति है, कूटनीति है, ये तो होती रहेगी। तो हमें इसके बारे में तो बहुत ही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वी शुड नॉट बी टू मच वरीड अबाउट इट। दिस विल हैपन एंड इट मे ओनली इंक्रीज इन फ्यूचर। Sir, do you see any indications of change in behavior of jihadi groups and Pakistani armed forces and Pakistani establishment after Operation Sindhu? Okay, so जैसे मैंने कहा and in my book also कि ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल डांस कर रहा है। चाइना से भी मदद ले रहा है, यूएसए से भी मदद ले रहा है, जबकि यूएसए और चाइना का अपना कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन वो दोनों साइड से जो है हेल्प ले रहा है। वो चाहता है कि वो एंटी इंडिया जो स्टैंड उनके देश में है वही पनपती रही है, क्योंकि वही एक मुद्दा है जिसके ऊपर पाकिस्तान एकत्रित है। ये तो उनके अपने भी जो है कई किस्म के प्रॉब्लम हैं। अभी तक वो जो है चलते आए थे कि हम टेररिज्म करते रहेंगे और इंडिया कोई मुंह तोड़ जवाब देने वाला नहीं है। उनका स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट है, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, इसकी बात होती थी कि इंडियन पेशेंस इज इनफाइनाइट। एंड अगर शायद आपने धुरंधर मूवी देखी हो तो उसमें शुरू बोलता है कि भाई आप तो कुछ करोगे नहीं, लेकिन वो सोच भी हमने बदल दी है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये तुरंत बंद कर देंगे, शायद कभी भी बंद ना करें। तो सवाल ये नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने जितना एफर्ट लगाया उससे बहुत ही जल्दी और कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आ जाएगा। सवाल ये है कि वी हैव इंक्रीज देयर कॉस्ट्स।
वो फिर भी कोई और तरीका निकालेंगे और कोशिश करेंगे, लेकिन वो जिहादी ग्रुप्स और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, दोनों आपने पूछा, दोनों को बिल्कुल साफ हो गया है कि अब इतना आसान नहीं है, और अगर हम ये टेररिज्म को आगे बढ़ाएंगे तो इसका विपरीत जवाब हमारे ऊपर भी पड़ेगा। ये ऐलान हो गया है क्लियरली। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अभी वो ज्यादा सतर्क रहेंगे। सबसे पहले इफेक्ट तो ये हुआ है कि जो इंडिया बॉर्डर के साथ साथ पंजाब एरिया में जो आतंकवादी ठिकाने थे वो भी हटके दूर चले गए हैं, पहाड़ों में चले गए हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था वहां चले गए हैं, दूर हो गए हैं, क्योंकि उनको डर है कि उनके ऊपर वार होगा। तो पहाड़ों के बीच में जाके उन्होंने नए ठिकाने बनाए हैं जो कि दूर कट। तो एक तो ये इफेक्ट हुआ कि जो आतंकवादी हैं वो बहुत सतर्क हो गए हैं और इतना नजदीक नहीं रह सकते, प्लेन एरिया में, सिटीज में नहीं रह सकते। वो वेस्ट जाके अफगानिस्तान बॉर्डर के पास नए ठिकाने बना रहे हैं। इसके ऊपर इंटेलिजेंस भी आया है और आपने देखा होगा शायद मीडिया में। दूसरी बात, जो स्टेट है वो बहुत ही बौखलाया हुआ है। 2-3 स्टेटमेंट आए थे, एक तो मुनीर ने खुद दिया जब वो यूएसए में थे, और एक इनके डीजीआईएस में थे। नेक्स्ट टाइम वी विल हिट देम फ्रॉम द ईस्ट। मैंने इसमें लिखा भी है, अपनी किताब में उसका स्टेटमेंट का जिक्र किया है कि इंडिया ऑल्सो मस्ट नो दैट दे कैन बी हिट एनीवेयर। उनको पता चल गया है कि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर पे जो डिफेंसेस हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, जितना मर्जी करें हमको हानि नहीं पहुंचा सकते। अब वो सोच रहे हैं कि ईस्ट साइड से दूर से जाएंगे, कुछ शायद बांग्लादेश में बेसिस बनाएंगे, पता नहीं कहाँ, चाइना से करेंगे, नॉर्थ ईस्ट से करेंगे। तो उनका अभी नजरिया ईस्ट की तरफ चढ़ा गया है ताकि वहां से हमें हानि पहुंचाएं। तो उनके ऊपर जरूर असर पड़ा है, उनको पता चल गया है कि इतना आसान नहीं है। इनफैक्ट मेरी किताब में ये मैंने लिखा है कि दी पाकिस्तान्स पॉलिसी ऑफ प्रॉक्सी वॉर हैज हिट द वॉल ऑफ इंडियन रेट्रीब्यूशन। अभी उनके सामने दीवार खड़ी हो गई है, अब इनको जरूर जो है ठेस पहुंची है, वो सोच रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे मैंने बुक लॉन्च के दौरान कहा था कि जब हमने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स की पूरी के बाद हमारे सैनिक टुकड़े विदेश में गए, बॉर्डर पार करके गए, तो 3 साल तक कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। अगला क्या हुआ? पुलवामा 2019, 3 साल। 2019 में जब हमारे हवाई जहाज गए, उसके बाद कोई ज्यादा बड़ा हमला नहीं हुआ 6 साल तक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले 3 साल, फिर 6 साल। अब मुझे लगता है, मेरा मानना है कि 5-6 साल तो विराम कुछ होगा, इसमें इस तरीके की हरकत वो शायद ना कर पाए। अब वो कोई नया तरीका इस्तेमाल करेगा किसी तीसरे देश के थ्रू, डायरेक्ट इंडिया बॉर्डर के ऊपर। जो पाकिस्तान बॉर्डर है वो हमारा बहुत मजबूत हो गया है, डिफेंस बन चुकी है। अगर आप मेरी किताब का पहला चैप्टर देखेंगे, उसमें मैंने दर्शाया है कि पूरे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में बॉर्डर फेंस है, लेकिन जब यह कश्मीरी मुद्दा शुरू हुआ 89-90 में, कश्मीर में फेंस नहीं थी। और मैंने जिक्र किया उसमें, हजारों के तादाद में आतंकवादी कश्मीर में घुसपैठ कर चुके थे, और हजारों की तादाद में हर साल आतंकवादी हमले हो रहे थे। 3-4-5 हजार आतंकवादी हमले एक साल में हमारे पास कश्मीर में होते थे। तो इसका, और मैं वहां कश्मीर में मौजूद था 95-96 जब ये सबसे ज्यादा था। हर एक दिन में 10-15-20 हमले कश्मीर वादी में इर्द गिर्द हो रहे थे, एक दिन में 10-15-20 हमले। ये उस वक्त था जब हमारे पास एलसी फेंस नहीं थी।
बाकी मैंने बताया किस तरीके से आरआर हमारी खड़ी हुई, राष्ट्रीय राइफल्स फोर्स हमने खड़ी करी वहां। जी। जैसे ही हमने राष्ट्रीय राइफल फोर्स वहां डाली, आतंकवादी हमले कम होने लगे, क्योंकि हम विजय प्राप्त करने लगे। जब वो कम होने लगे, 90 से लेके 97-98 तक बहुत ज्यादा कम होने लगे, तब तो कारगिल युद्ध हुआ। जब कारगिल युद्ध हुआ तो हमारे कुछ सैनिक 8 माउंटेन डिव जैसे थे जो कश्मीर वादी में थे, हमने उठा के लद्दाख भेजने पड़े, और हमने कारगिल युद्ध किया और 8 माउंटेन डिव वहीं रह गया। तो कुछ हमारा ध्यान कश्मीर वादी से हटके लद्दाख में गया। फिर आंकड़े चढ़ने लगे, उतने नहीं चढ़े जितने 95 में थे, लेकिन आंकड़े चढ़ने लगे। 2001 में हमने फैसला किया ऑप विजय के बाद कि हम कश्मीर और पीओके के बीच में एक एलसी फेंस बनाएंगे। जैसे ही हमने फेंस बनाई, सारे आंकड़े कम होने लगे। जो हजारों में थे वो 200-300 तक आ गए। 2008 में क्या हुआ, उन्होंने बॉम्बे हमला किया। अगर आप मेरी किताब में देखेंगे जो मैंने आंकड़े दिए हैं, किस तरीके से जो आंकड़े गिरने लगे और इतनी हद तक आ गए कि जो, जैसे मैंने कहा, 5000-3000 में थे, वो 1000 से कम, 500 से कम, 300-400 के आसपास आ गए। उस वक्त हुआ बॉम्बे हमला, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आंकड़े गिरते गए। आगे चलते जाइए, फिर क्या आता है, आर्टिकल 370। जब आर्टिकल 370 हटता है, आंकड़े और भी कम हो रहे हैं। फिर मैंने और जो है इस किताब में ग्राफ दिए हैं कि किस तरीके से आंकड़े कम होने लगे, और स्टोन पेंटिंग जो चलता था, पथराव जो होता था, उनके आंकड़े भी गिरने लगे, और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगी। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कोई जरूर कोशिश की कि इस चीज को बढ़ावा दिया जाए, और इसीलिए ये पहलगाम हुआ है। ये सब चीजें मैंने इसमें हमारी किताब में दर्शाई हैं, बहुत रिसर्च करके, और हर एक चीज का न्यूज आर्टिकल देते हुए हमने इसको दर्शाया है और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैसे आगे ये चलेगा। सर, while writing Redline Redrawn, how did you balance classified operational details with need for open analytic writing? तो जैसे मैंने कहा, हमने कई इंटरेक्शंस करी, और वर्बली जब हमारे डिस्कशन होते थे तो हमने क्लियर पूछा कि हम ये छाप सकते हैं या नहीं छाप सकते। बाकी हम खुद जानकार हैं कि क्या चीज़ सिक्योरिटी लीक मानी जाती है, क्या नहीं मानी जाती है, तो हमने खुद ही नहीं लिखा। लेकिन जहां हमसे कोई चूक हुई तो 3 बार ये हमारा मैन्युस्क्रिप्ट फौज में गया। उन्होंने जो भी चीज़ें हमको बोली निकालने के लिए, हमने जो है निकाल दी। बहुत कुछ ज़्यादा था नहीं, क्योंकि हमने वैसे ही जो हमारा स्क्रिप्ट था ऐसे रखा कि फैक्ट्स आए, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो भी हमने फैक्ट्स दिए उसके साथ हमने मीडिया रिपोर्ट दी। हमने ये भी कोशिश की कि विदेशी मीडिया ज़्यादा हो, विदेशी किताबें ज़्यादा हों, इन सब का हमने विवरण किया कि जो भी हम मुद्दा हमारी कहानी के तौर पे हम लिख रहे हैं, हर एक के बीच बीच में आप पाएंगे कि हमने इंडियन मीडिया, अल जजीरा मीडिया, कई जगह पाकिस्तानी DGISPR, उनके खुद का जो स्टेटमेंट है वो हमने छाप के डाला है कि ये देखिए, यही प्रूफ है। सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि पहलगाम हमले और ऑप सिंदूर के बीच में जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट दिया। याल्दा हाकिम एक बहुत मशहूर इंटरनेशनल पॉडकास्ट करती हैं, न्यूज चैनल चलाती हैं, याल्दा हाकिम। उनको कहा उन्होंने, वी हैव बीन डूइंग द डर्टी वर्क ऑफ USA फॉर 3 decades। 30 साल से हम USA के लिए आतंकवादी पाल रहे हैं। ये क्लियर स्टेटमेंट था। तो हमने उसका स्क्रीनशॉट लिया है, उसका लिंक डाला है, आप जाइए सुन लीजिए। ये उनके मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं। जो उनके मुशर्रफ थे, उन्होंने एक जर्मन मैगजीन को इंटरव्यू दिया था कई साल पहले, जिसमें उन्होंने कहा है, हाँ, हमने ये टेरर कैंप्स खड़े किए। इंटरनेशनल मीडिया को मुशर्रफ जी ने बताया होगा कि हाँ जी, पाकिस्तान ने ये टेरर कैंप बनाए थे, और हम समझते थे
कि पूरी दुनिया जो है कश्मीर के मुद्दे में मदद करेगी, आप लोगों ने तो किया नहीं मदद। ये उन्होंने जर्मन मीडिया को बोला कि आप मुझे आज पूछ रहे हो कि पाकिस्तान ने आतंकवादी कैंप लगाए। हाँ, हमने लगाए, लेकिन हमने इसलिए लगाए क्योंकि आपने हमारा मदद नहीं किया। तो ये इंटरव्यू हुआ है, छापा है मैंने इसके बारे में। सर, हम जब देखते हैं कि इतिहास में थोड़ा जाते हैं, जब अफगानिस्तान से यूएसएसआर फोर्सेस जा रहे थे, तब जियाउल हक साहब ने जो टेररिस्ट थे, जो वहाँ के जिहादीज थे, उनको कश्मीर में भेजना शुरू किया। तब हमने उस समय प्रोएक्टिव स्टेप्स क्यों नहीं लिए, मतलब भारत सरकार ने, या उस समय क्या क्या मजबूरियां रही होंगी सर? जिस तरीके से मैंने बताया कि उन दिनों हमारा भरोसा ज्यादा था कि पूरी दुनिया हमारे प्रॉब्लम को समझे। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, 1979 से लेकर 1989, 10 साल तक अमेरिकन फंडिंग सीआईए के थ्रू पाकिस्तान में पैसे और हथियार आए। उन्होंने अफगानी पश्तून को बहकाव में डाला, उनको हथियार दिए और रशियन आर्मी से लड़ने के लिए अफगानिस्तान भेजा। 10 साल तक ये चलता रहा। इनका नाम बोला गया अफगान मुजाहिदीन। उनको कौन फंड कर रहा था? सीआईए। उनको कौन ट्रेनिंग दे रहा था? पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आईएसआई। पाकिस्तान एसएसजी के जवान भी साथ जाते थे, उनके लीडर भी साथ जाते थे। और 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने रशियन आर्मी को अफगानिस्तान से खदेड़ के वापस भेज दिया। अब एक बहुत मशहूर ऑथर्स हैं पाकिस्तान हार्ड कंट्री, एंड एनातोल लेविन जो है, उन्होंने लिखा है इसके बारे में कि जब ये विक्ट्री हासिल हुई, अफगान मुजाहिदीन ने रशियन आर्मी को हराया, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ये समझती है कि पाकिस्तान आर्मी ने रशियन आर्मी को हराया है। तो जिस तरीके से मैं बता रहा था कि 1979 जब अफगानिस्तान में रशिया आया, उसी टाइम पर ईरान में आयतुल्लाह ने टेक ओवर किया था और शाह ऑफ ईरान चले गए थे। और तो अमेरिका ने पाया कि ईरान से भी उनकी दोस्ती हट गई है और अफगानिस्तान में भी रशिया आ रहा है, और बहुत जल्दी रशिया और नीचे आके ओशन तक आ जाएगा। तो उनका एक बहुत कंपल्जन था कि किसी तरीके से अफगानिस्तान से रशिया को निकाला जाए। तो उन्होंने बहुत एफर्ट डाला, सीआईए के थ्रू पाकिस्तान को साथ लिया। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने ये टेररिस्ट कैंप्स बनाए, जो कि अफगानी पश्तून जो रशियन आर्मी के आने के टाइम कुछ पश्तून पाकिस्तान में आ गए थे, उन्हीं में से इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आतंकवादी बनाए। उनको अफगान मुजाहिदीन का नाम दिया गया और उन्होंने वापस उनको अफगानिस्तान के अंदर भेजा, कलाशनिकोव हथियार और आरपीजी लेके। और 10 साल तक ये युद्ध चला, क्योंकि एक्चुअली अफगानी मुजाहिदीन लड़ रहे थे रशियन आर्मी से, और 10 साल के बाद रशिया वहां से छोड़ के चला गया। तो ये जो मैं पहले जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने बताया है यल्दा हकीम को कि हम तो भाई 30 साल से ये सब गंदा काम कर रहे हैं यूएसए के लिए, वी हैव बीन डूइंग द डर्टी वर्क ऑफ यूएसए फॉर 3 डेकेड्स, ये उसका जिक्र कर रहे थे। अब जब ये अफगान मुजाहिदीन खड़े हो गए हैं, उनमें से कुछ तो अफगान ही थे, तो वो तो वहीं रह गए अपने घर में, कुछ बाहर से आए थे, चेचनिया, सुदान, दूर दूर से लोग आए थे। उनका क्या किया जाए? यूएसए ने तो इंटरेस्ट छोड़ दिया, यूएसए ने वहां फंडिंग बंद कर दी और वो चले गए वापस। रशिया चला गया, यूएसए चला गया, अब ये अफगान मुजाहिदीन बच गए और इनके हैंडलर पाकिस्तान में बच गए। तो जैसे मैं कह रहा था, एक बहुत मशहूर ऑथर हैं एनातोल लेविन, जो कि पाकिस्तान के बहुत जानकार हैं। उन्होंने 5-6 साल पाकिस्तान में रह के किताब लिखी है। उन्होंने ये क्लियरली लिखा है कि जो ये विजय पाई, अफगान मुजाहिदीन ने रशियन आर्मी के खिलाफ विजय पाई, पाकिस्तान आर्मी ये समझता है कि पाकिस्तान आर्मी की विजय थी। बोले हमने रशियन आर्मी को हराया, क्यों ना हम इन्हीं मुजाहिदीन का हेल्प लेते हुए हम कश्मीर से इंडियन आर्मी को निकाल दें। तो उन्होंने इनको मोड़ा, और जैसे मैंने कहा एलसी फेंस नहीं थी, बॉर्डर फेंस नहीं थी, उन्होंने कश्मीर में इनको दाखिल किया।
1995 96 मैं वहाँ था, रादर 93 to 95 मैं वहाँ था। तो ये कई पठान और विदेशी आतंकवादी आते थे और बहुत ही कट्टर आतंकवादी थे, और उनसे इंडियन आर्मी ने भिड़ाव की, उनको बिल्कुल खत्म किया, और धीरे धीरे आतंकवाद वहां कम होने लगा। जब ये इनिशियल जो बढ़ाव आया था ये अफगान से ही आया था, और जी सर। कुछ हद तक कुछ मिलिटेंट्स कश्मीरी भी थे जो पीओके में जाके ट्रेनिंग लेके आए, तो उनको हम बोलते थे पीटीएम, पाकिस्तान ट्रेन मिलिटेंट, एंड कुछ थे एफटी, जो हम बोलते थे एफटी मतलब फॉरेन टेररिस्ट। तो ये दो किस्म के आतंकवादी हमारे सामने आते थे। दोनों का लड़ने का तरीका कुछ अलग था, और जब हम उनके सामने आते थे तो हमें बहुत जल्दी पता चल जाता था कि ये एफटी है या पीटीएम है, और हमारे उनके साथ युद्ध करने का तरीका कुछ तब्दीली होती थी, ये एफटी है या पीटीएम है। पीटीएम। जब आतंकवादी के आंकड़े कम होने लगे उसके बाद मैंने आपको जिक्र किया है ये सब कैसे हुआ, और फाइनली जो है अब बहुत हद तक मेरे ख्याल से ये जो आतंकवादी गतिविधियां हैं कम हो गई हैं, और हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी ही पूरा अमन आ जाए। सर हम कहें कि जो रेड लाइन रीड्रॉन्स है वो और किताबों से और आर्टिकल से जो पिछले 1 साल में छपे उनसे कितना अलग है, और जो रीडर है उसको सबसे ज़्यादा अटेंशन किस क्लोजेस्ट पार्ट पर लगानी चाहिए उस बुक को अच्छे से समझने के लिए सर? तो इसमें जैसे मैंने कहा कि हमारी भारत की जो नई रणनीति है डायनामिक रिस्पांस, इसमें मैंने जो है विस्तार में बताया गया है कि क्यों हमारी रणनीति बदली। पहले हमारा सुंदर जी डॉक्ट्रिन था, फिर कोल्ड स्टार्ट हुआ, अभी डायनामिक रिस्पांस है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। शुरू में जो मैंने बताया है कि किस तरीके से कश्मीरी आतंकवाद शुरू हुआ, उसका अफगानिस्तान में जो आतंकवाद शुरू हुआ था 1979 से 89 से, उसमें क्या लेना देना है, ये मेरे ख्याल से दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा, ये पहली किताब है जो को ऑथर्ड है, जिसमें एक डिप्लोमेट है, एक एयरफोर्स ऑफिसर है और 2 आर्मी ऑफिसर हैं। इन्होंने मिलके इसको किया है, को ऑथर। जो अलग अलग चैप्टर लिखे हुए जो है कई किताबें जिसमें 10-15 ऑथर होते हैं, उसमें तो कई मिक्स मिलेंगे आपको, लेकिन को ऑथर्ड किताब ये पहली है, और आर्मी चीफ ने भी इसके बारे में जिक्र किया था जब उन्होंने ये बुक लॉन्च की है। तो ये कुछ खास बातें हैं इस किताब में, और मैं जरूर चाहूंगा कि सब लोग इसको देखें। हम ये भी कोशिश करेंगे कि इसका हिंदी में अनुवाद हो, मराठी में अनुवाद हो, और शायद पंजाबी में भी अनुवाद हो। जी सर आज इतना बड़ा दिन है, 1 साल की एनिवर्सरी हुई ऑपरेशन सिंदूर की, 1 साल हो गया, और इतना ज़बरदस्त हमने मिलिट्री जो कोऑपरेशन हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था। सर अगर पाकिस्तान इन फ्यूचर कुछ इस तरीके की हरकत करता है या टेररिस्ट अटैक करता है दोबारा, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए सर? तो ये जो है सवाल कई बार पूछा जाता है कि अगर छोटा सा ही हमला होगा तो क्या हम वैसे ऑपरेशन सिंदूर जैसे चलेंगे। हमने ये भी कहा है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, कभी भी हम इसको जारी कर सकते हैं। तो ये फैसले जो हैं, ये हमारे सिविलियन लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप एक साथ बैठ के एकजुट होके पॉलिटिको मिलिट्री डिसीजन लेंगे कि किस लेवल तक हमने रिस्पांस देना है, कहाँ देना है, कब देना है। तो ये सब चीजें हमारे हाथ में है, क्योंकि रेड लाइंस हमने बनाई हैं और डायनामिक रिस्पांस हम करेंगे। तो ये कोई भी दूसरा तीसरा आदमी हमें नहीं बता सकता कि ये कैसे हमने करना है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि अब जो है इसका भविष्य हम खुद लिखेंगे। जरूर जवाब आएगा, लेकिन वो किस स्तर का जवाब होगा, वो किस स्तर का हमला हुआ है उसके ऊपर निर्भर है। उस हमले में हमारे पास कितना सबूत है कि इसके पीछे किसका हाथ था, वो भी निर्भर करता है कि हमारा जवाबी कार्रवाई कैसे होगी। तो ये कोई दूसरा या तीसरा आदमी हमें नहीं बताएगा, ये हम खुद बैठ के फैसला करेंगे, और कभी भी कहीं भी किसी भी स्तर तक हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत ही कीमती समय हमें देने के लिए सर,
और मैं आपको फिर दोबारा सर शुभकामनाएं देता हूँ रेड लाइन्स रीड्रॉन के लिए और ऑपरेशन सिंदूर के लिए सर। थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए वंस अगेन सर। आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपने मुझे इस शो पे बुलाया और हमारी किताब और की सर जिक्र करी। बहुत धन्यवाद। लॉन्ग लिव इंडिया एंड लॉन्ग लिव इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी, Yes. नेवी एंड जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर।